and names and units of these symbols. This stands for force, force, and its SI unit is Newton, Newton. It has another unit dyne, and always remember 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. 10 raised to power 5 dyne. Please note this down. Next one, force is a vector quantity. That is why teacher is putting the mark on it, arrow mark. Means force has magnitude as well as direction. This is given by mass into acceleration. Mass into acceleration. The force acting on a body of mass m, and a is the acceleration. Remember, mass should remain constant. Mass unit is kilogram, whereas acceleration unit is mass is taken in kilogram, acceleration is taken in meter per second square. Meter per second square. Another formula bete, acceleration itself is equal to rate of change of velocity. Rate of change of velocity. और यहां पर एक नया टर्म आया है velocity. Velocity is always taken in meter per second. Meter per second. बेटे आप बड़ी हैरानी की बात है कि टीचर ने 3 फार्मूले 4 लिख दिए और बच्चे अभी तक घूम रहे हैं क्लासों में. You should settle down as quickly as possible. Now, again, we are making further formulas. There is another formula, small p with vector on it is equal to mass into velocity. This small p is known as linear momentum. Linear momentum, or you simply call it momentum. Actually, it is the quantity of motion in a body. What is its unit? It is taken in kilogram meter per second. Kilogram meter per second is its unit. Okay, bete? Another thing you will write, action force is equal to reaction force, but both are opposite in direction. That is why we put the negative sign here. यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, action and reaction are equal and opposite. Another formula, shabash bache, what is that? If on one side you get friction and on other side you get applied force, the graph between the two, always remember, is linearly rising straight line, and later on it turns like this. Remember, small f is frictional force. Small f is what? Either you can call it friction or it is called as frictional force. Another formula useful will be this. Kinetic energy is equal to half mass into velocity square. Half mass into velocity square. काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और भी याद रखना बेटा. हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला आप और भी याद रखो. हाफ linear momentum square divided by mass.
ये 3 फार्मूले काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, तीनों याद होने चाहिए। एक और बच्चे आपने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। एक और बच्चे याद करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सा याद करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट मीटर होता है। और जो वर्क होता है, इसको जब भी लेते हैं वो जूल में लेते हैं, कैपिटल जे इज द यूनिट, जूल, ये इसका इंटरनेशनल यूनिट है। और एक इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, वो भी आप बच्चों को पता होना चाहिए कि वो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और याद रखना 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। एक और चीज आपने याद रखना है, अगर कभी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर से आवर में दे रखी हो, किलोमीटर पर आवर में, तो आप उस वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी यूनिट चेंज होकर मीटर पर सेकंड में आ जाएंगी, मीटर पर सेकंड। और क्या चीज याद रखनी है बेटे, और ये याद रखनी है आपको, 1 आवर जो होता है, 1 आवर, उसमें आपने याद रखना है 60 तो मिनट होते हैं, लेकिन 3600 सेकंड होते हैं। एक और याद रखना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक लास्ट फार्मूला लिख लो, वो फार्मूला एडवांस फार्मूला है, कभी कभार काम आ जाता है, कभी कभार। उसको बोलते हैं कैपिटल जे इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, और इसका नाम होता है इम्पल्स, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। रेड कलर से लिखा हुआ एडवांस फार्मूला है, और बाकी सारे फार्मूले आपके 100% आपको आने चाहिए, वरना आपका न्यूमेरिकल हो नहीं सकते। क्या मैं उम्मीद करूं अपने बच्चों की कि उन्होंने ये लिख लिए? जिन जिन बच्चों ने लिख लिया बेटे, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव मेड दिस चार्ट। ओके, तो sufficient time has been given, let's proceed now further, let's proceed now further। Class teachers are requested to please contact the person who is supposed to distribute the assignments in the classes. There must be some specified assigned person for this job. We have already sent the assignment. श्रेयस मिल गई असाइनमेंट। Okay, but sure. So in the we will do particularly the numerical part, bache, okay? Or later on other question.
First of all, we will move to the sixth question. Sixth question. Okay. Question 6. A force of 20 Newton acts on a body of mass 4 kg. What is the acceleration produced? I will call for this the student Jaspreet Kaur, 9th A. 9th A, Jaspreet Kaur. Please come on the mic. शाबाश, किसी को भी बुलाया जा सकता है. प्लीज सिट अटेंटिवली. बेटे जसप्रीत कौर 9th ए वाले बच्चे को माइक पे आना पड़ेगा, उतनी देर क्लास रुकी रहेगी वरना. प्रेजेंट है या एब्सेंट है? अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म. माइक ऑन करो. Switch on the mic and read this question and try to tell me the idea. How will you solve it? 5 meter per second square. But first of all, tell me which formula you have applied for question number 6. Which formula you have applied? देखो, रास्ते में पूछ लिया फिर तो आपने, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता आपने आंसर कैसे बता दिए? डोंट स्पॉट द स्टूडेंट. दूसरे बच्चों से पूछना नहीं है. एक्सेलरेशन. सो इस बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछ के बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये फार्मूला लगाएगा ये बच्चा. बिल्कुल ठीक कह रहा है. बैठो बेटे, टेक योर सीट. तो 20 इज इक्वल टू दिस. 4 is the mass, acceleration you have to calculate बेटे. Easily you can write. जो बच्चा इसका acceleration ऐसे 5 लिख के आ जाएगा, उसको इस 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में 1 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि उसने यूनिट मेंशन नहीं करा होगा. Always mention the unit. And important thing, force should be put in Newton, mass should be put in kilogram, and the acceleration should be put in meter per second square. These are the international units of these physical quantities. SI units. एक बच्चे ने मेरे को बोला सर, तो इंटरनेशनल यूनिट IU होना चाहिए. IU इंटरनेशनल. आप SI क्यों बोलते हैं सारे टीचर? SI यूनिट. तो मैं बताना चाहूंगा बेटे, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं साइंटिस्ट की, वो फ्रांस कंट्री में होती हैं. और फ्रांस के पास एक सिटी है सेवरिस, पेरिस के पास. तो फ्रेंच लैंग्वेज में इसको सिस्टमे इंटरनेशनल बोलते हैं. सिस्टमे इंटरनेशनल. तो सिस्टम का S उठा लिया, इंटरनेशनल का I. तो SI यूनिट बना दिया. मतलब वही है, द यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. दुनिया के कम से कम 200 देश इन यूनिट्स को मानते हैं. 200 कंट्रीज. लेट्स मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. इशिता, 9th F. 9th F, Ishita. Please come on the mic. Read the statement and tell me the idea. How will you solve it? Ma'am, please help me. 9th क्लास में नहीं है. क्लास में नहीं है. Another student of same section, Tejasvi, 9th F, Tejasvi. हाँ बेटे, read the 7th question and try to solve it. Read the 7th question loudly on the mic. Sir, mass multiply force. Now, which formula you will use? Velocity. Mass multiply velocity. बेटे अच्छा, आप मेरे को बताओगे तो इसका क्या आप बिना पेन टच करे इसकी कैलकुलेशन करके बता सकते हो कितना आंसर आएगा? वेलोसिटी इज 20 मीटर. सॉरी, वेलोसिटी इज बेटे in this question 20 meter per second.
right? Without using pen, can you tell me what will be the answer of linear momentum? अरे बता ही नहीं रहे बेटे, आसानी तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 multiplied by 1000, तो you should say 2 into 10 raised to power 4। क्या ये आंसर सही लिखा है टीचर ने, या देयर इज सम मिस्टेक? एनीबॉडी? देयर इज वन मिस्टेक। I should always mention the SI unit of linear momentum। एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत से बच्चे बिना फार्मूले लिखे ही उसका डाटा पुट करके कैलकुलेशंस कर देते हैं, फार्मूला नहीं मेंशन करते पेपर में, हालांकि उनके माइंड में होता है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, आप उन बच्चों को आधे मार्क्स दोगे जो बिना फार्मूले लिखे कैलकुलेशंस करते हैं। याद रखना ये बात। मैंने कई साल 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के पेपर चेक करे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दिस टाइम आई नीड द स्टूडेंट उदीप चौधरी, 9th G। 9th G उदीप चौधरी, बेटे कम ऑन द माइक। शाबाश। नॉट कमिंग, मे बी एब्सेंट। आ गया बेटे। आप उदीप चौधरी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ोगे आप, और मेरे को बताओगे कैसे करो। क्वेश्चन 9। बेटे अभी तक आपने बोलना नहीं शुरू किया, लेजी बहुत है मुझे। अगले क्वेश्चन के लिए अर्जुन तैयार रहे, 9th D का। 9th D का अर्जुन। उदीप, व्हाई डोंट यू स्पीक? स्विच ऑन द माइक 9th A। Yes, हाँ, स्पीक आउट बेटे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ 9th क्वेश्चन? 9th A का माइक ऑफ है। an object of mass 2 kg is moving with the velocity of 3 meters per second. If the velocity becomes 6 meters per second, what is the change of momentum? हाँ बेटे, क्या आइडिया क्या है आपका? इस क्वेश्चन में मास दिया 2 kg, आप कैसे निकालोगे? कुछ आइडिया दोगे बेटे? वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और बाद में नई वेलोसिटी बन गई v डैश 6 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा? सर पहले इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, अच्छा, फिर उसको क्या करोगे? फिर सर फाइनल। आपको शाबाश दी जाती है। आइडिया आपका अच्छा है, लेकिन ऐसे अपने ये वाले स्टेप्स नहीं करने पेपर में। अपने क्या करना है बताता हूं, बैठो। इस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर पहले मास इनटू वेलोसिटी करके इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, फिर मास इनटू v डैश मल्टीप्लाई करके फाइनल मोमेंटम निकाल लो, फिर उन दोनों का डिफरेंस कर दो। ऐसे इस बच्चे ने बोला है चेंज इन मोमेंटम के लिए। बेटे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे तो हो सकता है बीच में स्टेप्स में गलती हो जाए। अब क्या पता फाइनल गलत निकालो, क्या पता इनिशियल। क्यों ना वहीं से शुरू करें जो हमें पेपर में पूछी हुई है चीज। चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। हमने डाटा रखना ही नहीं है, हम पहले सिंबॉलिकली सॉल्व करेंगे। मास v डैश माइनस v। अब यहां पर हम डाटा पुट करेंगे, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम भी पूछा है, हमें इनिशियल और फाइनल तो पूछा नहीं। हम फालतू स्टेप्स क्यों करें पेपर में, टाइम क्यों खराब करें? तो 2 हेयर, 6 हेयर, 3 हेयर, तो दैट बिकम्स 6। अब मैं एक बच्चे को बता रहा हूं, बुला रहा हूं, जो बच्चा इसमें मिस्टेक बताएगा कि मैंने क्या करी है। महक, महक 9th G, प्लीज कम ऑन द माइक। महक 9th G। और याद रहे अगले क्वेश्चन के लिए अर्जुन ने आना है। महक बेटे इसमें मैंने क्या मिस्टेक करी?
सर यूनिट्स नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, शाबाश, प्लीज सिट। तो इस तरह से टीचर ने 9th क्वेश्चन भी करा। अर्जुन आगे बेटे माइक पे आप। अर्जुन 9th टी। 9th डी में अर्जुन आया ही नहीं। हम्म, ओके। एक और बच्चा है 9th ई में, करनीत कौर। करनीत कौर, करनीत कौर 9th ई। बेटे आप 10th क्वेश्चन पढ़ोगे। 10th क्वेश्चन। और Of mass 0.5 kg is fired from a gun with a velocity of 400 meters second. What is the momentum of the bullet? हाँ बेटे, मैं आपको बाकी बच्चों को बता दूं इसका मतलब क्या है। आपने जाना नहीं है अभी सीट पे, आपने इसका आइडिया देना है कैसे। इस गन को, इसके गन के ट्रिगर को जब मैंने प्रेस करा तो यहां से एक बुलेट निकला। बुलेट को मजल भी बोल सकते हैं, MUZZLE, मजल। और इसका मास है बच्चे 0.05 kg, ऐसे हमें दे रखा है। और साथ में बोला है कि ये जो बुलेट है वो इतनी वेलोसिटी से गया, 400 मीटर पर सेकंड। हाँ बेटे आप बताओ कैसे करोगे आप इसका लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए। Linear momentum equal to mass multiplied by velocity. और क्या आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चे। ये डाटा पड़ा है, आपने पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना। और क्या मेरे को आंसर बता सकते हो डायरेक्ट। मास का 0.05 और वेलोसिटी 400। मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर मेरे भारत का प्यारा सा बच्चा ये जो माइक पे खड़ा है बिना पेन यूज करे इसका आंसर बता दे। Sir 20. क्या बात है, वेरी नाइस। तो शी फाइनली सक्सीडेड, फुल मार्क्स टू द स्टूडेंट 20। और मिस्टेक क्या है, इसको बोलना चाहिए 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से टीचर ने आपके सामने धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में 4 न्यूमेरिकल्स करे। जिन बच्चों को ये चारों न्यूमेरिकल्स समझ आ गए उन्हें टीचर को फीडबैक देना होगा। अगर आपको समझ आ गया आपको राइट हैंड खड़ा करना है। अगर आपको नहीं समझ आया कोई भी क्वेश्चन तो आपको लेफ्ट हैंड खड़ा करना होगा। माय क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस? यस और नो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। जो बच्चा दोनों हाथ नहीं खड़ा करना चाहता वो क्लास में ना बैठे प्लीज। आई डोंट लाइक द लेजी स्टूडेंट्स। 9th F से पूछ रहा हूं, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस? बैठो बैठ, डाउन डाउन डाउन, शाबाश। तो आगे से हमारा ये नियम रहेगा कि अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। ओके, एवरीथिंग इज राइट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रेज योर राइट हैंड, गिव द फीडबैक टू द टीचर। अगर किसी बच्चे का लेफ्ट हैंड खड़ा होएगा तो मेरे को आसानी से नजर आ जाएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा भी बता सकता हूं अपने बच्चे के लिए। ठीक है बेटे। सो अब मेरे को एक और प्यारा सा बच्चा चाहिए माइक पे, यशिका सिंह 9th बी। यशिका सिंह आ जाओ बेटे 9th बी। आपको क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना है, 29। यशिका आया ही नहीं बच्चा, हो सकता है एब्सेंट हो। ये कौन से इसमें था भाई। यशिका 9th बी। मैम प्लीज कंफर्म करना बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा कोई नहीं चाहता जो प्रेजेंट हो और डिसओबे करे टीचर को और माइक पे आए ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी। ओके,
Another student, 9th D, Raghav Sharma. Raghav Sharma, 9th D. Is there any student? No one. 9th C में एक बच्चा है, सिराजदीप सिंह. सिराजदीप सिंह, 9th B. नहीं, 9th C, सॉरी, 9th C. सिराजदीप सिंह, 9th C. बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 29. Read the statement of 29th question and try to tell me the idea if you know how to solve. What is the recoil velocity of the gun? Assume no external force. तो कोई आइडिया है बेटे कैसे करोगे इसको? एनी आइडिया कैसे कर पाओगे? नई आइडिया है तो आप नो बोल सकते हो फ्रैंकली. कोई बात. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज टेक योर. तो बेटे 29th क्वेश्चन करने से पहले मैं अपने बच्चों को एक खास चीज बताना चाहता हूं. थ्योरी की खास चीज. प्लीज अंडरस्टैंड. 29th क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा. पहले क्या बताना पड़ेगा? ध्यान से सुनो. अगर ये गन है और इसमें ये बुलेट भी है और शुरू में ये रेस्ट पर है, एट रेस्ट, इसके ट्रिगर को हमने नहीं दबाया, एट रेस्ट, तब जब कोई बॉडी रेस्ट पर होएगी तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होएगा? आप कहोगे सर मास तो कुछ ना कुछ पुट कर दोगे आप, लेकिन आपने खुद ही बोला है जो रेस्ट पर हो तो उसकी वेलोसिटी आपको 0 मीटर पर सेकंड लेनी पड़ेगी. वेलोसिटी इज 0. तो जैसे मैंने इसको 0 पुट करा तो इनिशियल मोमेंटम आ गया 0. ओके. अब मैंने इसको जैसे ही ट्रिगर कर दिया तो व्हाट हैपेंस सेकंड सिचुएशन में? ऐसा ट्रिगर करने से हल्का सा फोर्स लगता है बाहर से, जिसको लगभग 0 फोर्स ही बोलेंगे हम. तो बुलेट तो यहां पर चला गया बेटे. देखो बुलेट यहां चला गया इधर को बड़ी तेज वेलोसिटी से, और इस जो गन होती है इसको बैकवर्ड जर्क मिलता है, और जितनी वेलोसिटी से ये वापस आती है उसको रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं, और ये होगी बुलेट की वेलोसिटी. याद रखना जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये यहां से खास पॉइंट है. इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0. एक बच्चा कहता है सर कैसे 0? आपने ट्रिगर को दबाया तो है. ट्रिगर को प्रेस करना इज एज लेस फोर्स एज नो फोर्स. ट्रिगर का फोर्स दबाना उसको नहीं मानेंगे. जब फोर्स 0 हो तो पूरे सिस्टम का, गन और बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम होएगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही होगा. फाइनल और इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही रहता है लीनियर मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो. और इस पूरी चीज को जिसको टीचर येलो कलर के बॉक्स में लिख रहा है, अगर इसको लैंग्वेज में लिख दें, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम यानी बॉडी इज 0, देन फाइनल मोमेंटम रिमेन्स इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहां तक हमारी थ्योरी थी. अब बच्चा बोलेगा सर वैसे ये दोनों रिक्वायर्ड वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी. बिल्कुल होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी. तो ये जो दोनों मोमेंटम है एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं. फाइनल मोमेंटम अब जब नलिफाई मतलब 0 आ जाते हैं तब.
अब फाइनल मोमेंटम, बच्चा कहता है सर फाइनल मोमेंटम बनेगा किसका? फाइनल मोमेंटम गन का और बुलेट का, दोनों का मिलाकर टोटल होएगा। मास ऑफ द गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दोनों को हमने ऐड कर दिया। लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहां माइनस लगाया। तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम राइट साइड पर ले जाएं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन होएगा कितना? मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। अब यहां पर एक बात याद रहे कि हमें सारे मास दे रखे, तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डाटा पुट करा बेटे, यहां तक थ्योरी खत्म हो गई है। ग्रीन लाइन से ऊपर ऊपर थ्योरी खत्म हो चुकी है बेटे, सभी बच्चों को नोट करनी चाहिए। अब मैं मास ऑफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमसे पूछा हुआ है, तो बुलेट का मास कितना दे रखा है बेटे? 20 ग्राम। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बुलेट की? 400 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ द गन कितना दे रखा है? 2 kg। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बुलेट का मास किलोग्राम में नहीं पुट, सॉरी ग्राम में नहीं पुट कर सकते। ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट। तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है। और अगर इस 1000 को नीचे लेकर आए तो 1 ग्राम की वैल्यू निकलेगी 1/1000 ब्रैकेट में साथ में किलोग्राम। तो हम 1 ग्राम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा अगला स्टेप? तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऐसे बनेगी, देखो 20 इंटू 1/1000, अब मैं किलोग्राम लिख सकता हूं, इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारे ऐसे यूनिट्स में हैं बच्चे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स कैन से सर 400 को ऐसे ही रख दो, इस 20 को 2 से डिवाइड करके ऐसे कर दो, और ये 1000 अभी भी आपका नीचे पड़ा है, तो 3 जीरो कट होगी, तो आप कह सकते हो आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। देखो ये न्यूमेरिकल पूरे बोर्ड की जगह ले गया बेटे, पूरे बोर्ड की। पहले याद रहे मैं इधर से इधर सॉल्व करता हूं, आमतौर पर टीचर राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हैं तो उनकी बॉडी से छुप जाता है सॉल्यूशन। मैं इधर राइट से लेफ्ट जाऊंगा, टीचर लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं। पहले ये दिखाया, फिर मैं इधर आ गया ताकि बच्चे को ये भी दिखता रहे, ये भी दिखता रहे, फिर इधर आ गया ताकि बच्चों को वो दोनों भी दिखते रहे। शाबाश, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पर इसमें इसके एग्जाम में आने के चांसेस फिर भी कम होते हैं, कम होते हैं इसके चांसेस। कौन बच्चा बोल सकता है बोल्डली कि उसको ये समझ आ गया? प्लीज रेज योर लेफ्ट और राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? हैव यू अंडरस्टूड इट? 9th F? ओके ओके बेटा, एक ना मेरे को इतना दुख होता है, अगर आपको नहीं समझ आया आप लेफ्ट हैंड खड़ा कर लो, अगर समझ आ गया तो राइट कर लो। मैं पूछता हूँ कोई बच्चे ऐसे ही बैठे, उनको ये फैसला ही नहीं कर होता उनसे, वो बच्चे सबसे बेकार है मेरे लिए। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? यार या तो कुछ बच्चों को सुनता ही नहीं है, ईयर प्रॉब्लम है किसी की। ठीक है, श्योर, ओके। अब हम एक बच्चे को बुलाते हैं माइक पे। 9th A का बच्चा है प्यारा सा हर्षवीर कौर। हर्षवीर कौर 9th A। बेटे आपने 30th क्वेश्चन पढ़ना है और आइडिया बताना है कैसे करोगे 30th।
शाबाश। A cricket ball of mass 0.15 kg moving at 20 meter per second is hit by a bat and returns with a velocity of 30 meter per second in the opposite direction. If the contact time between bat and ball is 0.01 second, find the force exerted by the bat and on the ball. हाँ बेटे, ये डाटा तो मैंने आपको लिख दिया। अब थोड़ी देर के लिए बिना इस कोई भी माइंड पे वर्डन नहीं रखना आपने। आ गया नहीं आ गया ना सी, कुछ आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हो कैसे आप करोगे। कैन यू प्लीज थिंक पीसफुली द आइडिया हेल्पफुल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल with no burden on the mind whether you are successful or not. चलो कोई बात, बैठो बैठो बैठो, कोई बात। अब इस बच्चे को फिर भी शाबाश है क्योंकि उसने बिल्कुल सिंसियरली सोचने की कोशिश करी। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। दस पर्सन सेज कि यहां पर एक प्लेयर है जिसके हाथ में क्रिकेट का बैट है, ठीक है, और इधर से बॉल आया। जैसे बॉल इस बैट से टच करने जैसा है, टच करने जैसा, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की। फिर ये बॉल को शॉट लग जाता है, जैसे ही शॉट लगता है तो बॉल इधर चले गई, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी बेटे। ये बताया हुआ है हमें दोनों। उसने बोला बॉल और बैट आपस में इतने टाइम के लिए टच में रहे, बॉल और बैट आपस में इतने टाइम के लिए टच में रहे, और ये दे रखा है मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास भी दे रखा है। इस बैट ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, वो फोर्स कितना न्यूटन का लगाया होगा। दिस इज द फोर्स बाय बैट ऑन बॉल, ये हमको निकालना। सिचुएशन मैंने आपको बता दी। क्या कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा क्लास में, जो इसका बता सके इन एनी सेक्शन? चलो कंपटीशन समझ लो, कंपटीशन। लेट्स सी स्कूल में ब्राइटेस्ट बच्चा कौन सा है जो माइक पर आके इसका आइडिया दे सके कि सर ये ऐसे होएगा। अरे वाह, एक बच्चा आया 9th F में। बेटे पहले नाम बताना है, व्हाट इज योर नेम? सर तवनीर। तवनीर, तवनीर, हाँ कैसे करोगे बेटे? सर पहले एक्सेलरेशन निकाल के फिर फोर्स इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन से फोर्स निकल जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। फोर्स इक्वल टू -750 न्यूटन। ओके, सर एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू -30 -20 बाय 0.01 सेकेंड, acceleration equal to -5000 meter per second square, force equal to mass into acceleration, 15 by 100 into 5000, which is equal to minus 750 Newton. बेटे पहले तो अपना नाम दोबारा बताओ। सर तवनीर। तवनीर, तवनीर बच्चे के लिए सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठे क्लैपिंग करेंगे, शाबाश। प्लीज प्लीज, दिस इज द रिमार्केबल आंसर, बहुत अच्छा। तो इस बच्चे ने मेरे को बताया सर, तनवीर बेटे एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें भी एक इंप्रूवमेंट करनी है। क्या इंप्रूवमेंट करनी है? आपने बोला सर पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में एक्सेलरेशन पुट करूंगा। बेटे देखो, एक्सेलरेशन पहले तब निकालना चाहिए अगर हमसे पेपर में पूछा होता।
पेपर में हमसे पूछा ही नहीं एक्सेलरेशन, इसलिए हम सिंबॉलिकली सॉल्व कर देंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंबॉलिकली सॉल्व करने से कैलकुलेशनें आसान हो जाती हैं। एक्सेलरेशन पूछा हमसे कहीं? नहीं पूछा। लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमने सिंबॉलिकली सॉल्व कर दिया। अब हम डाटा पुट करेंगे। अब यहां पर डाटा पुट करने से दो फायदे हैं, एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, दूसरा टाइम Time is कम over. लगेगा, और तीसरा अगर कैलकुलेशन Thank you, गलत sir. भी हो जाए, अगर गलत भी हो जाए तो भी टीचर को यहां तक सॉल्व किए हुए Excuse me, sir. के मार्क्स देने पड़ेंगे। यस Sir, time is over. ओके, ये लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटे, ठीक है। 0.15 फाइनल वेलोसिटी 30 इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 0.01। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 15/100 और ये देखो 0.011 अपॉन ऊपर 100 चला गया, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो ये देखो कैलकुलेशंस कितनी आसान हो गई हैं। नहीं बेटे तवनीर, विल यू एग्री के आपको सिंबॉलिकली सॉल्व करने से कैलकुलेशन आसान होगी? अगर यस तो रेज योर हैंड जहां पर भी आप बैठे हो। शाबाश, बेस्ट सिट डाउन। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड लाइक दिस, मेरे पास ये फीडबैक होगी। प्लीज वेव योर हैंड बेटे, डोंट शाई, डोंट शाई, टीचर को फीडबैक चाहिए होता है। ओके थैंक यू, अगली बार मिलते हैं, बाय बाय। Sir, thank you for teaching us. गॉड ब्लेस यू। जाना यार